Hello everyone, Ajay sir once again with you with my last part video of the last part of videos of the same chapter, chemical reactions and equations, part 12.1. In this part you will study about the effects of oxidation reactions in your daily life. Although there are a lot of effects in our daily life, but two main examples of oxidation reactions in our daily life are corrosion and rancidity. Corrosion and rancidity. So let's start what is the corrosion and what is the rancidity. Let's see. Topic is effects of oxidation reactions in our daily life. First topic is corrosion. Corrosion. What is corrosion? Actually, you all have seen around you a large number of articles made up of different types of metals. आप सभी ने अपने चारों ओर different articles और objects देखे हैं which are made up of metals, either from iron, copper, silver or aluminium. These are the main metals which are being used in our daily life to make the various items or articles or objects. Besides iron, the metal iron is using at a very large scale because of its cheapness, सस्ता होने के कारण, and its strongness और मजबूत होने के कारण it is being used to a very large extent in the various items. Our main gate, bridges, machine parts, vehicles and so many others articles are there which are made up of iron. But what do you observe when an iron article or some other metal articles made up that is the made up of copper, aluminium or silver, they becomes dull with the passage of time. Their luster, that is the shininess, becomes dull. When we use copper, it becomes dull. It covered with a green coating, green layer. Silver jewelry covered with black coating. As our mother or sister have the jewelry made up of silver, like pajave, ring, earrings, etc. After daily uses, it becomes dull or it becomes tarnished. That means they loses its shininess. Why? Because of the layer of some oxides, या तो उन पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है और कार्बोनेट्स की लेयर चढ़ जाती है और आइदर द लेयर ऑफ सल्फाइड्स या सल्फाइड्स की लेयर चढ़ जाती है, सो दैट दे लूजेस देयर शाइनीनेस and either they become with the green coating or the black coating or the brown coating. Brown coating we have seen on the iron articles. What is it? What it is known as? It is known as rust.
इसको हम रस्ट कहते हैं, हिंदी में जंग भी कहते हैं. व्हाट इज द रस्ट? एक्चुअली रस्ट स्लोली ईट अप द मेटल सरफेस. जो रस्ट है वो आयरन का जो सरफेस है उसको धीरे धीरे ख़त्म करता जाता है, डिटोरिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है. एंड विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, इन द ड्यू लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम, बड़े लंबे समय के बाद, दैट आयरन आर्टिकल्स बिकम्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से खराब हो जाता है, एंड बिकम्स यूजलेस, और हमारे लिए यूजलेस हो जाता है. So that is the corrosion of iron. In daily language, we call it rusting of iron. So, see what is the corrosion. Corrosion is actually slowly eating up of metals or आर्टिकल्स इनसे बनी हुई चीजें और ऑब्जेक्ट्स by the reaction of different gases, like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide gas, water vapor, vapors etc. present in atmosphere, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑन इट्स सरफेस, और इनके सरफेस पर एक लेयर चढ़ जाती है, ऑन इट्स सरफेस, एज ऑफ ऑक्साइड्स लेयर और सल्फाइड्स लेयर, सल्फाइड की लेयर, और कार्बोनेट्स या किसी कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है. क्लियर है? स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल्स आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स बाय द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स which are present in atmosphere and forms a layer on its surface. इसके सरफेस पर लेयर चढ़ जाती है, किसकी? ऑक्साइड्स की, सल्फाइड्स की, या फिर कार्बोनेट्स की. The common example of corrosion is, corrosion का जो कॉमन एग्जाम्पल है is rusting of iron or the corrosion of iron. Rusting of iron. Clear? What is the rust? Rust is a brown colored and flaky substance. Flaky means non sticky, जो चिपकता नहीं है. Non sticky substance. आयरन जो रस्टिंग है, रस्टिंग एक ब्राउन कलर्ड फ्लेकी, दैट इज द नॉन स्टिकी सब्सटेंस, एंड इट इज एक्चुअली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, hydrated ferric oxide. That means Fe2O3 dot
XH2O. X means number of the molecules of water attacked on. होता क्यों है ये होता है because when an iron article exposed to air for a long time, जब किसी आयरन के आर्टिकल को बड़े लंबे समय तक एटमॉस्फेयर या एयर में खुला छोड़ देते हैं, एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ देते हैं, सो विद द रिएक्शन ऑफ और विद द अटैकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं उनका इस पर अटैक्स हो जाता है, एंड विद द अटैकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स एंड फॉर्म्स अ ब्राउन फ्लेकी लेयर, नॉन स्टिकी लेयर, फ्लेकी ऑक्साइड्स लेयर ऑन इट। इससे होता क्या है, ये रस्ट है, दिस इज द रस्ट, इससे होता क्या है, इट डिटोरिएट्स मीन्स धीरे धीरे खत्म करना, इट डिटोरिएट्स द मेटल, धीरे धीरे मेटल को कंप्लीटली खा जाता है और जो है ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। It is a non-sticky substance, flaky, that means brown. What is the rust? It is the hydrated ferric oxide. Formula is Fe2O3 dot XH2O. X means the number of water vapors, water molecules are attacked to ferric oxide. कब होता है ये? When an iron articles exposed to air for a long time, with the attacking of oxygen and water vapors, forms a brown flaky oxide layer on it. It is known as the rust and it deteriorates the metal. ये धीरे धीरे जो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं या जो मेटल से बने हुए दूसरे आर्टिकल्स हैं, ब्रिजेस हैं, मशीनरी पार्ट्स हैं या हमारा मेन गेट्स है, जो भी कुछ आइटम्स हैं, इनको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ये क्लियर? नाउ द सेकंड एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Yes. Okay. Next example of corrosion is, I rub it. The dullness of copper articles. जो कॉपर से बने हुए आर्टिकल्स हैं, वो भी धीरे धीरे डल हो जाते हैं, यानी उनकी जो लस्टर है, जो शाइनीनेस है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। वाई? सो द सेकंड एग्जांपल इज द आर्टिकल्स ऑफ कॉपर बिकम्स डल आफ्टर सम टाइम। कुछ समय तक यूज करने के बाद जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं वो भी डल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द कोरोजन, एंड अ ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड। कॉपर आर्टिकल्स पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन इट ऑफ, जो किसकी होती है, वो होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। ये जो कोटिंग बनती है, इट इज द कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। द फॉर्मूला इज CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। क्यों? because of the attacking of, अब इस पर किसका अटैक होता है? because of the attacking of कार्बन डाइऑक्साइड
गैस जो प्रेजेंट है एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर। तो इस पे कैसी कोटिंग हो जाती है, इस पे कोटिंग हो जाती है ग्रीन कलर की, और ये कोटिंग किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। क्लियर है? आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? सो वंस अगेन द आर्टिकल्स ऑफ कॉपर बिकम्स डल, इनकी जो शाइन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द कोरोजन। सो इट इज द कोरोजन ऑफ कॉपर आर्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज it is attacked by the atmospheric gases like carbon dioxide, oxygen and water vapor which is present in atmosphere and covered with a green coating, and this green coating is of basic copper carbonate CuCO3 dot CuOH whole twice. Is it clear? So it is the corrosion of copper articles because of attacking of carbon dioxide, water vapors and oxygen. Oxygen is missing here. Oxygen, carbon dioxide, water vapors in atmosphere. One more example is there, the articles of silver. चांदी कहते हैं इसे हिंदी में, the articles of silver tarnished, ये वर्ड यूज होता है इसके लिए, that means become dull, ये भी डल हो जाते हैं, and covered with a black coating, इन पर हो जाती है ब्लैक कलर की कोटिंग, with a black coating of silver sulfide, इस पर जो कोटिंग होती है वो सल्फाइड के रूप में होती है। ठीक है? because with a black coating of silver sulfide बाय द अटैक ऑफ, इन पर किसका अटैक होता है, ब्लैक कोटिंग ऑफ Ag2S बाय द अटैक ऑफ H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एंड वाटर वेपर्स इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सो these are the three most popular example of corrosion which corrode these most usable items, metals in our daily life, whether it is iron by the rust forming, it is of copper, basic copper carbonate, the green coating of basic copper carbonate, and the items of silver or the article of silver becomes black because of the forming of Ag2S, silver sulfide, with the it loses its shininess by the attack of H2S gas present in the atmosphere and water vapor. So these are the three most popular example of corrosion. अब बात आती है, does this corrosion is helpful to us in some cases? क्या ये corrosion किसी cases में हमारे लिए helpful भी है? Yes. In the case of aluminium, you can take the screenshot of it. Yes. So how it is helpful to us, although it is not useful to us, but in some cases it is useful to us. In the case of aluminium, it is with the node. In the case of aluminium articles forms oxide layer on it by the action of oxygen प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम बहुत जल्दी से उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बनाता है एंड फॉर्म्स
एल्यूमिना, ये पहले आ चुका है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला इज Al2O3। अब क्या होता है इससे, जैसे ही एल्युमिनियम के आर्टिकल्स के सरफेस पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, अब वो उसको फर्दर कोरोड होने से रोकती है। अब वो आगे ना उस पर अटैक कर पाता है वाटर, ना ही एल्युमिनियम अटैक कर पाता है, इज इट क्लियर, सॉरी ऑक्सीजन अटैक कर पाता है, और वो एल्युमिनियम फर्दर जो है कोरोड नहीं होती और ख़राब नहीं होता। हालांकि थोड़ा सा डल तो हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम डज नॉट डिटोरिएट, वो आगे डिटोरिएट नहीं होता है। इस तरह से एल्युमिनियम के आर्टिकल्स के केस में कोरोजन इज हेल्पफुल, इज इट क्लियर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट रेजिस्टेंट मेटल, मोस्ट corrosion resistant metal is aluminium। तो एल्युमिनियम एक ऐसा केस है जहां पर ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, इसमें आगे जो है कोरोजन नहीं हो पाता है। तो इज इट क्लियर। अब बात आती है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द आर्टिकल्स फ्रॉम कोरोजन। सो फॉर द प्रिवेंशन वी आइदर, आपको पता है पेंटिंग कर देते हैं, हम पेंट करते हैं, और जो ऑयलिंग कर देते हैं। नंबर 3 हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन, दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड बाय यू इन योर फर्दर नेक्स्ट चैप्टर। आयरन से बने जो ज़्यादा जो कोरोजन हो रहा है वो आयरन आर्टिकल्स में हो रहा है, तो इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंट कर देते हैं उन पे, या ऑयल्स ग्रीसिंग वगैरह कर देते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर देते हैं, या हम क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। आयरन के आर्टिकल पर हम जो है जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक कोटिंग, जिंक की या निकल की और क्रोमियम की, क्रोमियम कोटिंग, उस पर जो है कोटिंग इज डन ऑन, कोटिंग इज डन ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो भी आयरन के आर्टिकल्स हैं, आयरन आर्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम आयरन के आर्टिकल्स पर या तो जिंक की कोटिंग कर देते हैं, या निकल की, या फिर क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, और वो आयरन का आर्टिकल कोरोड होने से बच जाता है। क्लियर। बिकॉज सो टू प्रिवेंट द कोरोजन दीज 3 मेथड्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, इनको अपनाया जाता है। Now I think it should be clear to you. One more example of corrosion is rancidity. What is the rancidity? Rancidity is the oxidation of food items, oxidation of oils or fats। जो हमारे फूड आइटम में ऑयल और फैट प्रेजेंट है इन फूड स्टफ्स, होता क्या है, रिजल्टिंग, इससे रिजल्ट ये होता है, रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल और टेस्ट ऑफ द सेम, जिससे कि उस फूड आइटम का जो टेस्ट है जो वो खराब हो जाता है, और या उसमें से दुर्गंध या बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई, बिकॉज जो भी उस फूड स्टेप में ऑयल या फैट प्रेजेंट है, इट ऑक्सीडाइजेस, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। विथ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि वो खाना जो फूड स्टेप है वो खराब हो जाता है।
आपने देखा होगा कि व्हेन यू ओपन द चिप्स पैकेट, आपने चिप्स का पैकेट खोला और आधा खाया, रख दिया, 2-3 दिन बाद सोचा इसको फिर खा लेते हैं, तो उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है और टेस्ट भी वैसा नहीं होता जैसे हमें फर्स्ट डे लगा था। ऐसा किस लिए? बिकॉज ऑक्सीजन से वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, जो उसका फैट है, जो उसमें ऑयल है, जिसमें वो फ्राई किए गए हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। अब या हमारे घर में रखे हुए तमाम फूड स्टफ खराब हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है ऑयल्स और फैट, वो जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के कारण। अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इनसे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन चिप्स एक्सेट्रा पैकेट्स। इनके जो पैक्स होते हैं इनमें हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकाल दिया और उसमें नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है और जब ऑक्सीजन वहाँ है नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। दूसरा हम क्या करते हैं? वैक्यूम पैकिंग करते हैं। वैक्यूम पैकिंग क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ एयर और ऑक्सीजन फ्रॉम द पैक। जब हमने पैक में से कंप्लीटली एयर या ऑक्सीजन ही निकाल दी तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा पैक का, और वो पैकेट जो है बच जाएगा। और या हम थर्ड एक तरीका और अपनाते हैं, वो है आपका थर्ड वन आई एम राइटिंग हियर, रेफ्रिजरेशन कर देते हैं। रेफ्रिजरेशन, हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन अवॉइड्स ऑक्सीडेशन। रेफ्रिजरेशन से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अवॉइड हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन नीड सम टेम्परेचर। सो ऑक्सीडेशन जब हम रेफ्रिजरेट करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रिज में चीज़ों को रख देते हैं हम लोग, क्यों? वहाँ जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो जो हमारे फूड स्टेप हैं दे डोंट बिकम रैंसिड एंड द फिनोमेना रैंसिडिटी इज नॉट अकर देयर। सो दिस इज द होल अबाउट corrosion and rancidity, very simple topics. With this this chapter is completed now. I think I have explained you each and everything concerning with this chapter, chemical reaction and equations. So keep on watching again and again. आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो नोट्स भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज आई एम राइटिंग हेयर ईच एंड एवरीथिंग। I have written here at the board every reaction, every process, every phenomena. So the chapter is completed now. See you in the second chapter, acid, bases and salts. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब।